Hello, my dear students. I, Aditi, welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. This is the awesome team here which is here to teach you, to guide you, to give you quota level education, and that too for free, because you know that YouTube doesn't charge us. So what are you waiting for? Come on, fast, like, subscribe and share our YouTube channel. This is the domain in which we'll be working. We'll be giving you NCERT level education. That is, we'll be covering the school level education as well as the Olympiad level of 6 to 8. So that is beneficial for you, right? So tell more and more of your friends and relatives and whosoever you know, and share it as much as you can, so that more and more people can get benefited out of it, right? And not only just the 6 to 8 examinations, but we'll be covering 6 to 10th school level examinations, PRMO, NSEJS and NTSC as well, right? You can see it here. Then if you want any study material related to the video or DPPs, then you can subscribe it to our Telegram channel. You can have it there. All you need to do is download the app, Telegram app, and you can find the relevant classes here. If you're in 6th, then it will be TTB 06, and according to the class 07, 08, 09, right? And you can join us there. Right, so before starting the chapter, I would want you to promise to me as well as to yourself as well that you will be attending whole of my lecture. पूरा lecture आप attend करेंगे बिल्कुल ईमानदारी से, and you will be making all the notes of it. जितने भी मैं आपको notes लिखवा रही होंगी वो सब आप लिखेंगे, and you will be revising it so that you become a smart student and you pass your exams with very, very good marks. Okay. So today's chapter is rational numbers of class 7. This is the third chapter that we'll be covering, right? अब rational numbers क्या होता है, उससे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए. You should be knowing fractions आपको पता होने चाहिए. नंबर सिस्टम, नंबर जो सिस्टम होता है, मैंने 7th के फर्स्ट चैप्टर में भी आपको करवाया था. इंटीजर्स टाइम पे भी मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट करवाया था. So you should be knowing that as well. Then comparison of fractions, simplest forms, you should be knowing that. इस चैप्टर को करने के बाद you will be able to know about the rational numbers, right? Then negative representation कैसे करते हैं हम नंबर लाइन पे जो rational numbers होते हैं उनका. All this you will be able to know. Operations means plus, minus, into, divide. And I assume that you have studied all this. I assume कि आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है already. All we need to do is revise, and revise with very good questions, so you need not worry about that. Okay, so let's start. अब देखो rational number basically क्या होता है, p by q फॉर्म में हम लिखते हैं. सिंपल सी बात है. मान लो अगर मैं 750 मीटर अबव सी लेवल है, ठीक है, अबव सी लेवल है, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं 3/4 किलोमीटर, तो कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर. पर अगर मैं बोल रही हूँ 750 मीटर बिलो सी लेवल, तो क्या मैं उसे -3/4 किलोमीटर लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट लाइक दैट, राइट? सो माइनस इटसेल्फ हमें पता लग रहा है इससे कि वो बिलो सी लेवल जा रहा है. अगर माइनस में लिख रहा है तो वो बिलो सी लेवल है, और अगर अबव है तो वो अबव से, पॉजिटिव है तो अबव सी लेवल है, राइट? सो बेसिकली rational number होता क्या है? Rational number is basically a number which is written in the form of p by q, means numerator and denominator, where p and q are what? Integers. p and q integers है, क्यों? क्योंकि positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, right? And then q is not equals to 0, क्योंकि अगर denominator में 0 आएगा तो फिर वो not defined होगा, right? तो इसकी proper definition क्या होगी? Rational numbers are numbers. आप लोग भी मेरे संग उतारते जाएंगे सबको, राइट? जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो आपके रगों में दौड़ता जाएगा, समझे? सो रैशनल नंबर्स आर नंबर्स which are written in the form of p upon q, where p and q are integers. ज़रूरी है समझना कि p and q integers क्यों है. integers में क्या क्या आता है? प्लस माइनस दोनों आ जाता है, राइट? सो p and q are integers and q is not equals to 0. q जो है वो 0 नहीं हो सकता है. ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं अपन.
-3/4 वही एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -112/13 और 42/23 एंड सो ऑन, यू कैन राइट एज मैनी एज यू वांट, राइट। जो p बाई क्यू फॉर्म में होता है और इंटीजर्स होते हैं p और q, मतलब न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी व्हाट, इंटीजर्स। So have you understood what basic meaning of rational number means? Rational number का basic meaning क्या होता है? Let's move on. अब rational numbers के कुछ important points, जैसे कि हर एक fraction जो है, हर एक integer जो है वो क्या होगा, वो rational number होगा। क्यों? For example मैंने लिया -5 एक integer है, but is it a rational number? क्या ये rational number है? बिल्कुल है। क्यों? बिकॉज आई कैन राइट 1 बिलो, मैं 1 लिख सकती हूँ नीचे, डिनोमिनेटर में आई कैन राइट 1, तो ये क्या बन गया, ये रैशनल नंबर बन गया, राइट। तो हर एक इंटीजर जो है, इसी तरह से मान लो मैंने ले लिया और कोई नंबर -673, ठीक है। अब ये भी एक इंटीजर है, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, बट क्या ये रैशनल नंबर है? ऑफकोर्स है, आई कैन राइट इट लाइक दिस, राइट। तो हर एक इंटीजर मींस पॉजिटिव भी नंबर आप लोगे कोई सा, अगर हमने ले लिया 2, तो 2 के नीचे मैं 1 लिख सकती हूँ, 2 के नीचे आई कैन राइट 1, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर की फॉर्म में हो गया। तो अब मैं इससे क्या कह सकती हूँ कि हर एक इंटीजर जो मेरा है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, पर क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है? अगर मैंने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ आई रोट -2/3 मैंने लिख दिया, तो क्या ये इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि इंटीजर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखते ही नहीं है, राइट। इंटीजर तो बस क्या होते हैं, जहाँ पे होल नंबर्स के साथ हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देते हैं, दोज आर व्हाट, इंटीजर्स p बाई क्यू फॉर्म में होते ही नहीं है। तो अब वो क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, राइट। समझ गए अपन? अब अगर मैं लिख रही हूं इस तरह से, मैंने कोई रैशनल नंबर लिखा -11, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर तो है, दिस इज अ रैशनल नंबर एज वेल एज दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, राइट। तो जरूरी नहीं है कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, कुछ हो भी सकते हैं, बट सारे नहीं होंगे। सो इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर है आप सबको, राइट। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि वही सेम चीज है, हर एक फ्रैक्शन जो है, हर एक फ्रैक्शन विच इज रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म, ऑल दोज आर व्हाट, दोज आर रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि वो सब पॉजिटिव होते हैं। आई टोल्ड यू, हमने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पढ़ा था इससे पहले। एट दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, दो दे आर रिटन इन द p बाई क्यू फॉर्म, वो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, लेकिन हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, राइट, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। बट रैशनल नंबर के अंदर क्या होता है, और फ्रैक्शन की डेफिनेशन मैंने बताई क्या थी, फ्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर होल नंबर्स, वेयर p एंड q आर होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, राइट, पर रैशनल नंबर के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर मैं लिखूं लेट्स से 7/23, अगर मैंने 7/23 लिखा, तो ये फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है, क्योंकि रैशनल नंबर के हिसाब से ये पॉजिटिव है, राइट, और फ्रैक्शन तो पॉजिटिव होते ही हैं, तो यानी कि मेरे हर एक फ्रैक्शन जो हुए वो रैशनल नंबर हो गए। अब अगर मैं लिखती हूँ -7/23, तो क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ इससे, दैट एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, हर एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर होगा, बट हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। क्या हम ये बात समझ गए हैं बेटा? हैव वी अंडरस्टूड दिस? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, पर नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अ रैशनल नंबर p बाई q इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ q इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड द इंटीजर्स हैव नो कॉमन डिविजर। अच्छा, अगर किसी भी रैशनल नंबर को मुझे बताना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है, और आप उसे चेंज भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे? उसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और p और q में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कॉमन HCF हमेशा 1 होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं अपन। लेट्स से इफ आई टुक
63/11 -11। ठीक है, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया 63/-11। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? ऑल्दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर कोई HCF सिर्फ 1 है, राइट? कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट इज ट्रू। बट इसका जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। तो अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? आई विल मल्टीप्लाई डिवाइडेड विद -1। मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा -63 एंड दिस बिकम्स व्हाट? 11। तो अब ये क्या हो गया? अब ये रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरली हम जब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, उस टाइम पे आपको क्या देखना है? उस टाइम पे आपको जो फ्रैक्शन है उससे क्या, सॉरी जो रैशनल नंबर है उसे क्या करना होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि उसके अंदर कॉमन HCF जो है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एंड जो डिनोमिनेटर है दैट शुड बी पॉजिटिव, और उसको हम पॉजिटिव कर कैसे सकते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय -1, सिंपल। क्या हम ये बात समझ गए? हाँ, क्या बच्चों ये बात हमको समझ में आ गई है? चलो, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों के साइन सेम होते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या होता है? द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर have same sign, ठीक है? कैसे देखो, लेट्स से अगर मैंने एग्जाम्पल लिया -7/56, ठीक है? तो अब क्या ये सेम है? नहीं। अब यहाँ पे माइनस मैंने लगा दिया, तो यहाँ न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो ये क्या हो गया? दिस बिकम्स अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, राइट? तो ये क्या हो गया? 7/56, राइट? 7/56 मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। एक और लेकर के देखते हैं, 2/5। ये क्या है? ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्यों? इसके अंदर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, ये दोनों भी पॉजिटिव हो गए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मतलब अपने को बेसिकली क्या देखना है पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों या तो नेगेटिव हो, दोनों के साथ या तो नेगेटिव साइन अटैच हो रहा हो, या दोनों के साथ या तो पॉजिटिव साइन अटैच हो रहा हो। हमको सिर्फ ये देखने का है। समझ लगा है? ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं अपन। -72/-63 ले लो, चलो, ठीक है? अब इसमें भी माइनस माइनस है, इसमें भी दोनों माइनस हैं, तो ये क्या हो गए? पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गए। क्या हम समझ गए? और आप अपने घर में ट्राई कर सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव के। नेक्स्ट, नेगेटिव रैशनल नंबर बहुत सिंपल, जो पॉजिटिव नहीं है वो नेगेटिव है। नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या होगा? नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या होगा भाई? द न्यूमरेटर, अच्छा मैंने नंबर लिख दिया, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बेटा यहाँ पे न्यूमरेटर लिखा हुआ था, ठीक है? न्यूमरेटर, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर have different signs, दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। इसी का एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। अगर मुझे इसे लेना है तो ये हो जाएगा -7/56। न्यूमरेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, डिफरेंट हो गए। 2/-5, न्यूमरेटर में पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव है। क्या हो गए? अब ये क्या हो गए? ये हो गए नेगेटिव रैशनल नंबर्स।
these have become negative rational numbers. So are we clear about positive and negative rational numbers? क्या हमें समझ में आ गया positive और negative rational numbers क्या होते हैं? नेक्स्ट देखते हैं अपन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं? फ्रैक्शंस में अपन ने समझा था क्या करना होता है. किसी भी जो भी p बाई क्यू फॉर्म में हमें नंबर दिया हुआ है उसको इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम नंबर. मल्टीप्लाई डिवाइड करना है सेम नंबर से. तो अब अगर मुझे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं तो मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगी. लेट्स से मुझे -2/5 के 3 इक्विवेलेंट नंबर्स निकालने हैं. ठीक है, 3 इक्विवेलेंट नंबर्स निकालने हैं. तो अब मैं कैसे निकालूंगी? मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगी. किस तरह से? -2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/2. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2/2 कितना हो गया? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर -4/10. ये मेरा एक हो गया. सेकेंड -2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/3 कितना हो गया? -6/15. देन तीसरा लिखूंगी मैं -2/5 इंटू 4/4 -8/20. तो इस तरह से मेरे 3 क्या निकल गए? 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गए. कैसे निकाला मैंने? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द सेम नंबर. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द सेम नंबर कर लिया मैंने, तो निकल गए मेरे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. हैव वी अंडरस्टूड कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह से निकालना है? नेक्स्ट देखते हैं अपन लोएस्ट फॉर्म. लोएस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता था? लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता था कि हम किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी रैशनल नंबर को कैसे कर रहे हैं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में HCF कितना होना चाहे है? एक नंबर होना चाहिए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर. तो अब देखो 17 और 79 के अंदर कुछ भी कॉमन है क्या? आप किसी भी तरह से इसको वो कर सकते हो क्या? 17 और 79 के बीच में नहीं कर सकते. इसका मतलब ये क्या है? ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है, राइट? सो दिस इज इन लोएस्ट टर्म. डायरेक्टली लिख लो इसको. 17/19. अरे भाई 17/19 is in lowest term. Lowest term or lowest form, right? Then next, अब इसका 24/320 करो फटाफट. 24/320 को देखो क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? ऑब्वियसली नहीं है. दिख रहा है मुझको लोएस्ट फॉर्म में नहीं है. तो मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूंगी? इसके जो भी कॉमन HCF है डिवाइड करती जाऊंगी उससे और उसको उस फॉर्म में लाऊंगी जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक हो जाना चाहिए, एक नंबर हो जाना चाहिए. ठीक है, तो ये किससे जाएगा? देखो 8 की टेबल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. अरे 8 की टेबल से जाएगा. 8 6 24, 8 4 32 एंड 0, राइट? 8 6 तो 48 होता है. अरे 8 3 24, 8 3 24 एंड 8 4 32 एंड 0. तो अब ये क्या हो गया? 3/40. 3/40 में 3 और 40 में अब क्या कोई और कॉमन HCF है? नहीं है. दोनों के अंदर क्या है? 1 हो गया. तो अब 3/40 जो है वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. 3/40 इज नाउ इन द लोएस्ट फॉर्म. हैव वी अंडरस्टूड कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और लोएस्ट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अपने को क्या करना होता है कि मल्टीप्लाई. अगर मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी? उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगी. किससे? सेम नंबर से. और लोएस्ट टर्म निकालना है, लोएस्ट फॉर्म निकालना है तो मैं क्या करूंगी? उसके अंदर आई विल बी डिवाइडिंग. अगर वो लोएस्ट टर्म में नहीं है तो मैं उसकी जो भी कॉमन HCF है उससे डिवाइड कर दूंगी उसे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. वन मोर थिंग इन दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में एक और चीज है. देखो अगर मैं बोलती हूँ कि A/B इज इक्वल टू C/D. A/B इक्वल टू C/D, ये कब होगा? जब A/B और C/D दोनों क्या हुए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए. जब A/B और C/D इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए तो इसका मतलब क्या हो गया? A/B विल बी इक्वल टू C/D. तो मैं इससे क्या कह सकती हूँ? आई कैन से दैट A इंटू D इज इक्वल टू C इंटू B, राइट? A इंटू D इज इक्वल्स टू C इंटू B. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा सेम रिजल्ट.
तो ये बात ध्यान रखने की है कि अगर दो नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं, अगर दो रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, तो आप उसको किस तरह से डिनोट कर सकते हो, इस तरह से, मतलब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, क्या हमें ये चीज़ें समझ में आई? जो भी यहाँ पे छपा हुआ है वो सब आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई होप साथ में। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं रैशनल नंबर का नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन सबको पता है क्या होता है, स्केल देखी है आपने, उसके अंदर मार्क्स देखे ही हैं, 1 1 2 3 4 5, राइट। अब इंटीजर्स भी हम पढ़ चुके थे, तो हमें पता है कि नेगेटिव साइड मतलब जीरो के लेफ्ट साइड में भी क्या होती है, नंबर लाइन होती है, वी नो दिस नाउ, राइट। तो अब इसको नंबर लाइन को अपन नंबर लाइन पे अपन रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन, लेट्स सी दिस। सबसे पहले तो मैं इसे देखूंगी, सबसे पहले इसे देखो, -5/8 मैंने पहले भी समझाया है। -5/8 जो है, अब इसका माइनस हटा दो, इसका अगर माइनस हटा दोगे तो ये क्या हो गया, 5/8। 5/8 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और रिमेंबर प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू किससे किसके बीच में होती थी, 0 से 1 के बीच में होती थी, समझाया था मैंने। किससे किसके बीच में होती थी, 0 से 1 के बीच में, समझाया था ना मैंने, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है ये, पर इसमें नेगेटिव का साइन है। तो अब ये 0 से 1 के बीच में ना होकर के किसके बीच में लाई करेगा, ये जो वैल्यू है ये किसके बीच में लाई करेगा, -1 to 0 के बीच में, -1 to 0 के बीच में लाई करेगा इसका ये जो नंबर है। तो अब मुझे नंबर लाइन जो ड्रॉ करनी है वो भी -1 से 0 के बीच में ही होगी, मतलब ये जो नंबर है वो -1 से 0 के बीच में ही लाई कर रहा होगा। कैसे देखते हैं वो अपन। आप लोग प्लीज स्केल लेकर के करेंगे, इस सबको स्केल लेकर के बनाएंगे, राइट। सो आई मार्क 0 हियर, यहाँ पे मैं 0 मार्क कर देती हूँ, राइट। अब समझना 0 एंड लेट से यहाँ पे -1 मार्क कर दिया। अब समझना मुझे यहाँ पे मुझे कितने वो बनाने हैं, सेपरेशंस कितने बनाऊंगी मैं, उतने ही जितने यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, डिनोमिनेटर कितना है, 8, तो 8 ही मेरी डिफरेंट 8 यूनिट्स ही बनानी है मुझे डिफरेंट, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस की। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस की बनानी है मुझे, तो बनाएं। अब ये इक्वल डिस्टेंस के सेपरेशन अपन कैसे बनाएंगे, -1 जो भी डिनोमिनेटर है उससे -1 कर दो, उतने ही मुझे लाइंस खींचनी है इसके बीच में इक्वी डिस्टेंस पर। ठीक है, अगर 8 सेपरेशंस बनाने हैं मुझे तो मैं क्या करूँगी, -1 कर दूंगी, दैट इज 7, तो 7 लाइंस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी एट इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से अपन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज 1 then 2 then this is 3 4 5 6 and 7। ठीक है, 7 लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। यहाँ पे कितने सेपरेशंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है, एंड दिस इज ऑन द नेगेटिव साइड, दिस इज ऑन द नेगेटिव साइड। अब मैं इसको मार्क कर सकती हूँ, 0 is 0, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, -1/8 -2/8 -3/8 -4/8 -5/8 -6/8 -7/8 and -8/8। -8/8 is what? -8/8 is equivalent to what? -1 only। So that means जो हमने यहाँ पे बनाए हैं यूनिट डिस्टेंस पे सेपरेशंस बनाए हैं वो एकदम करेक्ट है। क्या हमें समझ में आ रही है ये बात? तो अब देखो मेरा नंबर कौन सा था, -5/8 मुझे मार्क करना था। वेयर इज -5/8? इट इज हियर। सो दिस इज द पॉइंट हियर, दिस इज द पॉइंट विच आई वांट, यानी कि मैंने -5/8 को रिप्रेजेंट कर दिया इस लाइन के ऊपर। यहाँ पे दिस विल बी लाइक दिस विल बी ऑन गोइंग। ठीक है, ये इस तरह से आगे चलती जाएगी। सो दिस इज द पॉइंट विच आई वांटेड। हैव वी अंडरस्टूड? अगर टाइप 1 में क्या बता रहा है वो, टाइप 1 में वो ये बता रहा है कि अगर मेरा जो न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, मीन्स इट इज काइंड ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर पॉजिटिव है तो उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा, अगर नेगेटिव है तो सिंपल उसका वैल्यू -1 से 0 के बीच में आ जाएगा। हैव वी अंडरस्टूड? और नंबर ऑफ सेपरेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ जो डिस्टेंसेस अपन बनाएंगे वो कितने होंगे, जितने
डिनोमिनेटर में हमें नंबर दे रखा है। हैव वी अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? तो अब अपन नेक्स्ट ये वाला करके देखते हैं, 13/5 और -13/5। मतलब करो, अब आप लोग करो इसको, फटाफट से करो इस क्वेश्चन को, एंड देन आई विल डू इट नेक्स्ट। फिर मैं करूंगी इस क्वेश्चन को, फटाफट से रिप्रेजेंट करो जैसे ऊपर दे रखा है। अब नाउ यू कैन सी हियर, आप लोग देख सकते हो कि दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज व्हाट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, तो इसको सबसे पहले मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करूंगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन में, राइट? पहले मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी, तो यहीं पे अपन कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा? 13/5। 13/5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? आई होप आपको पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट? 2 यहाँ आ गया और 3 हो गया, राइट? सो 13/5 को अपन ने कर दिया किस तरह से? 2 3/5। और इसी तरह से मैं किसको कर सकती हूँ? -13/5 को भी मैं इसी तरह कर सकती हूँ, -2 3/5, राइट? -2 3/5। हैव वी अंडरस्टूड? हैव वी अंडरस्टूड? जब प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा कोई रैशनल नंबर आपको दिया है, तो पॉजिटिव है तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में, और नेगेटिव है तो -1 से 0 के बीच में। पर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिस तरह से कुछ दिया हुआ है, तो आप पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, राइट? 13/5 था, उसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। -13/5 था, तो मैंने आगे नेगेटिव का साइन लगा दिया, राइट? अब क्या होगा? देखो, अब इसकी वैल्यू किसके बीच में आने वाली? सबसे पहले अपन 13/5 को देखते हैं। पहले अपन नंबर लाइन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। प्लीज यूज योर स्केल एंड पेंसिल एंड मेक इट प्रॉपरली, राइट? एकदम प्रॉपर बनाना है अपने को। अब ये किसके बीच में होगा? सबसे पहले अपन 13/5 को देखते हैं। 13/5 दैट इज 2 3/5। तो दिस इज स्लाइटली मोर देन 2, राइट? 2 3/5 इज स्लाइटली मोर देन 2, 2 से ज्यादा है ये, और क्या है? 3 से कम है, और क्या है? 3 से कम है, राइट? हैव यू अंडरस्टूड? ये जो 2 3/5 है, ये 2 से तो ज्यादा है बिकॉज दिस इज 2 3/5, बट क्या प्रॉपर 3 है? नहीं, 3 से भी कम है, 3 से कम है। मतलब ये वाला किसके बीच में होना चाहिए? 2 से 3 के बीच में। और ये किसके बीच में होना चाहिए? सिमिलरली -2 से -3 के बीच में। -2 से 3 के बीच में तो नहीं हो जाएगा ना ये वाला? यस, -2 से -3 के बीच में। आर वी गेटिंग इट? तो अब मैं इसको बनाती हूँ। इफ आई राइट हियर 0, यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ -1, ठीक है? अब यहाँ है -2 और यहाँ है -2, ठीक है? अब इसके बीच में मुझे कितने डिस्टेंसेस बनाने? कितने डिस्टेंस पे बनेगा? सॉरी, कितने सेपरेशंस बनाने पड़ेंगे मुझे? 5। और उस 5 के लिए मुझे लाइंस कितनी ड्रॉ करनी पड़ेगी? -1, दैट इज -1 मतलब कितने हो गए? 4। तो मतलब मुझे 4 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अब 4 लाइंस अपन ड्रॉ करते हैं। सॉरी, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है? तो अब यहाँ से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगी। कितना? 1 2 3 4, एंड दिस इज 5 विच इज व्हाट? 3। ये 3 है, उसके बीच में मैंने कितने सेपरेशंस बना दिए? 1 2 3 4 5। आप इक्वल बनाइएगा, राइट? विद द स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल आप प्रॉपर इक्वी डिस्टेंस पर बनाइएगा इसको। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी कितने बनाऊंगी? 4 लाइंस ड्रॉ करूंगी, तो उससे मुझे कितने सेपरेशन मिल जाएंगे? 5, जो कि मेरा डिनोमिनेटर है, जितने की मुझे चाहिए। आप देख पा रहे हो 2 इज अ होल नंबर, राइट? और यहाँ पे 3/5 क्या है? फिर से वही प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से होता था? जो डिनोमिनेटर है उतने हमने सेपरेशन बनानी है, जो न्यूमरेटर है उस अकॉर्डिंग हमने मार्क कर दिया हमारा नंबर। इधर भी मैं अब उतने ही ड्रॉ करूंगी, 1 2 3 4, एंड फिफ्थ पे मेरा क्या हो जाएगा? -3। फिफ्थ पोजीशन पे क्या हो जाएगा? -3। आर वी अंडरस्टैंडिंग कि हमें किस तरह से इसको करना है, किस तरह से इसे सॉल्व करना है? मतलब मैं इसको इस तरह से ब्लू से मार्क कर देती हूँ, चलो, क्योंकि ये इसके सब पार्टीशन है, राइट? 0 1 2, 2 और 3 के बीच में मैंने सब पार्टीशन बनाया है। इसमें भी 0 -1 -2, और इसके बीच में मैंने अलग से पार्टीशन किया है, राइट? तो ये क्या हो गए?
ये इसके सब पार्टीशन हो गए जहाँ पे मुझे मार्क करना है। अब फर्स्ट वाले को देखते हैं अपन, 2 3/5, 2 3/5, तो मैं ऐसे मार्क करूंगी 1/5, 2/5, 3/5, राइट। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड एक और आएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अपन इस साइड लिख देते हैं, 3 को यहाँ, सो दिस बिकम्स 1/5, 2/5, 3/5 एंड ये हो गया मेरा 4/5, और 5/5 क्या हो गया, 2 + 5/5, तो दैट बिकम्स व्हाट, 2 + 1 विच बिकम्स 3। समझ गए? क्या हम समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? दिस इज व्हाट, 2 5/5, तो 2 5/5 कितना हो गया, 2 + 1 विच बिकम्स व्हाट, 3, राइट। सो हैव वी अंडरस्टूड? अब इसमें मुझे क्या करना है, 3/5 मार्क करना है। सो 2 3/5 कहाँ है, 2 3/5 इज हियर, ये रहा। So this is my 2 3/5, this is my 2 3/5 और 13/5, this is my 2 3/5 और 13/5। Have we understood कि किस तरह से मार्क किया मैंने, right? वही प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह बनाया, किसके बीच में आना था, होल नंबर जो मेरा दे रखा है उससे और उसके नेक्स्ट होल नंबर के बीच में आना है। So ये आ गए, मैंने लाइन्स ड्रॉ करी, प्रॉपर वही प्रॉपर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही मैंने लाइन ड्रॉ करी, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। अब मुझे मार्क करना था यहाँ पे 3/5, तो मैंने वो मार्क कर दिया। हैव वी अंडरस्टूड दिस? बेटा समझ में आ रहा है ना अपन को? नेक्स्ट -2 3/5 को करते हैं अपन। अब इस साइड करेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, सी इस साइड भी मैं मार्क करती जाऊंगी, कितना मार्क करूंगी, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, और यहाँ पे भी -5/5 हो जाएगा, विच विल मेक व्हाट, -3, दैट विल मेक -3। हैव वी अंडरस्टूड दिस? तो अब मैं नेक्स्ट क्या लिखूंगी, इसके अंदर मुझे क्या मार्क करना है, 3/5, अगेन मुझे 3/5 मार्क करना है, तो वो कहाँ है, ये रहा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन व्हाट, -2/5, -2, सॉरी, this is -2 3/5 और -13/5 और -13/5। हैव वी अंडरस्टूड कि हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होना चाहिए नंबर लाइन के ऊपर? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? आई होप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो कोई गलती नहीं होगी ना स्कूल में, ना ओलंपियाड के एग्जाम्स में। ओके, इज दिस क्लियर? नहीं समझ आया है तो आप बैक करें वापस से, एंड देन यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, खुद से प्रैक्टिस करो। नहीं समझ आ रहा है तो फिर से वीडियो को चला करके देखो। ओके, नेक्स्ट चलो, कंपेयरिंग टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना। फ्रैक्शंस कंपेयर करने याद है, दो मेथड थे। एक तो अगर दो फ्रैक्शन दे रखे हैं आपको, दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट, और उससे ज़्यादा दिए हैं तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। वेरी सिंपल, राइट। अपन इसको दोनों मेथड से कर लेते हैं, वील डू इट बाय बोथ द मेथड्स। अब मुझे दिया है -3/2 और -3/4, राइट। तो एक शॉर्टर मेथड क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा, -3 × 4, -3 × 4, और ये कितना हो जाएगा, -3 × 2, सो दिस बिकम्स व्हाट, 4 3 12, ये कितना हो जाएगा, 3 2 6। तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि दिस इज नॉट पॉजिटिव, तो मैं 12 की तरफ ग्रेटर का साइन नहीं लगा सकती। रिमेंबर दिस, यहाँ पे क्या है, दोनों नेगेटिव हैं। एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू इंटीजर्स, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें मैंने बताया था कि नेगेटिव नंबर्स में जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा नंबर, उतना ही क्या होगा, छोटा। तो इसका मतलब यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा होगा, -6। -6 मीन्स व्हाट, -3/4 इज ग्रेटर देन -3/2। दिस इज वन वे, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या था, -3/2 and -3/4. We will take the LCM of denominator. So LCM of 2 and 4. 2 and 4 is what? 4. तो अब मैं ऐसे भी 4 बनाने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा, -3/2. I will multiply it with 2 and so I will multiply the numerator also with 2
this becomes what, -6/4 and similarly this is what, ये तो -3/4 है ही, -3/4 है ही, तो अब इसके अंदर बड़ा कौन सा हो गया, डेफिनेटली -3/4 इज ग्रेटर, वाई, दिस इज -6, दिस इज -3, अगेन नेगेटिव साइन में मैग्नीट्यूड जितना छोटा होगा नंबर वुड बी द ग्रेटर, नंबर वुड बी ग्रेटर इन दैट, तो यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा नंबर कौन सा हो गया, -3/4, -3/4 इज द ग्रेटर नंबर है, राइट, बोथ द केसेस में आंसर वी आर गेटिंग द सेम, राइट। नेक्स्ट इसको अरेंज करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है भाई, मतलब अपन को सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ करना है, तब इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, वी आर गिवन द नंबर्स एज, नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं, -2/3, 4/5, 6/7 एंड -1/6, तो डेफिनेट सी बात है कि छोटा नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली जो नेगेटिव वाला होगा, और पॉजिटिव नंबर्स बड़े होंगे, तो पहले मैं 3, 5, 6 और 7 का एलसीएम ले लूँगी, विच इज़ व्हाट, जो आएगा 210, तो अपन करके देखते हैं, 2 * 6 and 7, so this gives me what, 5 2 * 10 and 7 3 * 21, so 210, मतलब एलसीएम कितना निकला मेरा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 3, 5, 6 and 7 कितना निकला, 210, राइट, तो अब मैं इन सब को 210 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी जो डिनोमिनेटर्स, एंड सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग विद द सेम नंबर, I'll be multiplying the number with numerator as well, तो अब उसमें क्या होगा, -2/3 है, अब -2/3 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 को, सी 5 2 * 10 एंड 70 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं, तो ऊपर भी 70 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सो दिस विल गिव मी व्हाट, 7 2 * 14, 140/210, ये मेरा पहला कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट वाले को देखते हैं अपन, 4/5, इसमें मुझे किससे कन्वर्ट करना है, आई हैव टू डू इट विथ 3 2 * 6 एंड 7 6 * 42 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 42 से मल्टीप्लाई करना होगा, दिस विल गिव मी व्हाट, 8 and 16, 210। नेक्स्ट इज 6/7 है, अब मुझे इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 30 से, सो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 30 में यहाँ से भी करूँगी, दिस विल गिव मी व्हाट, 6 * 18, 180/210, एंड नेक्स्ट लास्ट इज -1/6, -1/6 को किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, 35 से, 35 से यहाँ भी किया, 35 से यहाँ भी किया, सो आई गेट -35/210, तो अब मुझे क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, आई एम गेटिंग -140/210, 168/210, then this is 180/210 and -35/210. So since we have to write it in the increasing order, means the smallest, we are supposed to write the smallest number first. So smallest number is which? This is the smallest number, which is what, -2/3. मतलब अगर मुझे इसे अरेंज करना होगा तो मैं कैसे करूँगी, I will be arranging it like this, -2/3 is the smallest number. Then next कौन सा आएगा, -35/210, which is what, -1/6. फिर उससे ग्रेटर नंबर कौन सा है, we have 180 here and 168 here, so 4/5 is the greater number here, and then 4/5 के बाद लास्ट कौन सा हुआ, 6/7. This is how we do the ascending and descending orders, right? और किस तरह से कंपेयर करते हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड जितना भी मैंने पढ़ाया, यू विल बी मेकिंग, आई होप यू हैव मेड प्रॉपर नोट्स ऑफ इट एज वेल, एंड आप उस सबको रिवाइज भी करोगे अच्छे से, ठीक है, ताकि आगे लेक्चर में मैं जो भी पढ़ा रही होंगी आप उससे कनेक्ट कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू डू इट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको मज़ा आया
एंड मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल and share it to as many people as you can, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for our upcoming videos. Thank you so much.